Hello students, my name is Rajkumar and welcome to the lecture number 2 of sequence and series. Lecture number first अपन complete कर चुके हैं. In lecture number first we studied about what is sequence, what are the different type of sequence, how can we represent any sequence. There are two ways of representing sequence. First method was listing out all the elements and second method was using the nth term formula. And after that we studied a special kind of sequence that was Fibonacci sequence. So in this lecture we will solve the exercise 9.1 problems and examples before that. Okay. So first example says write the first three terms in each of the following sequence defined by the following an equals to 2n plus 5. तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि मेरे पास कोई सीक्वेंस है, उसका nth टर्म मेरे को इस टाइप से डिफाइन कर रखा है an इक्वल टू 2n प्लस 5. ठीक है, और मेरे को फर्स्ट थ्री टर्म चाहिए. सो वहां पे अपन ने क्या बताया था कि अगर मेरे को फर्स्ट टर्म चाहिए तो n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आएगा, और n का वैल्यू अगर 3 पुट किया तो थर्ड टर्म आएगा. तो इफ आई पुट n इक्वल टू 1 देन माई फर्स्ट टर्म, तब मेरे पास कौन सा टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म. सो माई फर्स्ट टर्म विल बी a1, और जहां जहां n नजर आ रहा है वहां पे 1 लिख दिया. So from here I'll get 2 times 1 plus 5. So 2 times 1 equals to 2, 2 plus 5 equals to 7. So from here I can say for this given sequence first term will be 7. And next if I put n equals to 2, then if I put n equals to 2, then I'll get the second term. And second term is equal to a2. So a2 will be 2 times 2 plus 5. तो 2 times 2 equals to 4 plus 5. 4 plus 5 equals to 9. So from here second term is going to be 9. And lastly मेरे को क्या फाइंड करना है, थर्ड टर्म. So I have to put n equals to 3. So if I put n equals to 3, so from here I'll get third term which is a3. a3 is going to be 2 times 3 plus 5. So from here I'll get 6 plus 5. 6 plus 5 is nothing but 11. So my a3 is going to be 11. तो अपने तीन टर्म कौन से आ गए, फर्स्ट टर्म इज 7, सेकंड टर्म 9 और थर्ड टर्म 11. So that's the answer for example number 1 part first. Let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है. इस बार an का डेफिनेशन चेंज कर दिया, an इक्वल टू n माइनस 3/4. तो an का डेफिनेशन है n माइनस 3/4. तो थर्ड स्टार्टिंग के तीन टर्म चाहिए, तो विल पुट n इक्वल टू 1, 2 एंड 3. इफ आई पुट n इक्वल टू 1, सो a1 इज गोइंग टू बी 1 माइनस 3/4. 1 माइनस 3 इज -2, -2/4. तो यहां से कितना आ जाएगा, -1/2. तो यहां से बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी -1/2. नेक्स्ट इज इफ आई पुट n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 पुट करने पे सेकंड टर्म मिलेगा, दैट इज a2 इक्वल टू 2 minus 3/4. So from here I'll get -1/4. So I can say my second term is going to be minus of 1/4. अब put n equals to 3, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग के तीन टर्म चाहिए, तो n equals to 3 रखने पे थर्ड टर्म आएगा. So third term is going to be 3 minus 3/4. 3 minus 3 is nothing but 0. 0/4 equal to 0. तो यहां से मेरा थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म इज गोइंग टू बी 0. So I can say first term of this sequence is -half, second term is -1/4 and third term is going to be 0. ठीक है, let's move to the next question. Next example is what is the 20th term of the sequence defined by, मतलब मेरे को एक सीक्वेंस का nth टर्म का फॉर्मूला दे रखा है, that is n-1, 2 minus n and 3 plus n, और मेरे को कौन सा टर्म पूछा है, 20th टर्म. 20 टर्म का मतलब मेरे को a20 का वैल्यू पूछा है. तो what I have to do is I have to substitute n equals to 20 in the general formula of n. So I'll put n equals to 20. If I put n equals to 20, then I'll get which term? Then I'll get 20th term. So 20th term that is a20 which is given by, तो इस इक्वेशन में, इस जनरल फॉर्मूला की इक्वेशन में जहां जहां n आ रहा है उसको मेरे को 20 से सब्स्टिट्यूट करना है. So I'll get 20 minus 1, 2 minus 20, और यहाँ पे आ जाएगा 3 plus 20. सोल्व किया, 20 minus 1 तो 19 हो जाएगा, 2 minus 20 हो जाएगा
2 माइनस 20 माइनस 18 और 20 प्लस 3 हो जाएगा 23। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेना और इसका आंसर लिखना। यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे बॉक्स में एक बड़ा सा नंबर आ जाएगा, तो वो अपना आंसर हो जाएगा। माइनस 19 इंटू 18, 19 इंटू 18 इंटू 23, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया और फाइनल आंसर लिख लिया। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लेट द सीक्वेंस ए एंड बी डिफाइंड एज फॉलोज। मतलब सीक्वेंस को कैसे डिफाइन कर रखा है कि उसका फर्स्ट टर्म है वो 1 है। ठीक है, और उसके बाद ये टर्म्स निकालने के लिए मेरे को एक रिलेशन दे रखा है, दैट इज ए एन इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या बोला कि फर्स्ट टर्म तो 1 है और उससे अगले वाले टर्म इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि ए एन इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस 2। तो मेरे को उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकालना है तो उसके पिछले वाले टर्म में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो उससे अगले वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। तो मेरे को a1 a2 a3 a4 a5 पता करना है। a1 पहले से पता है और जो ये फॉर्मूला है ये वैलिड है ओनली फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो n का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, 2 से। 2 3 4 5 इस टाइप से अपन पुट करते जाएंगे। तो अगर मेरे को सेकंड टर्म निकालना है तो सेकंड टर्म निकालने के लिए मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, फॉर सेकंड टर्म आई विल पुट n इक्वल टू 2। कौन से फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 पुट किया, आई विल गेट a2 इक्वल टू 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 प्लस 2। सो फ्रॉम हियर a2 विल बी a1 प्लस 2। a1 का वैल्यू 1 दे रखा है तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। सो माई a2 इज गोइंग टू बी 3। तो सेकंड टर्म कितना आ गया, 3। अगर मैंने n का वैल्यू 3 पुट किया तो मेरे को कौन सा टर्म मिलेगा, थर्ड टर्म। सो फ्रॉम हियर इफ आई पुट n इक्वल टू 3 देन आई विल गेट थर्ड टर्म विच इज a3। a3 इज गोइंग टू बी a2 प्लस 2 और a2 का वैल्यू पहले निकाल चुके, a2 का वैल्यू 3, तो a2 की जगह 3 रिप्लेस किया, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। So from here I'll get a3 equal to 5। थर्ड टर्म आ गया। अगर मैं n का वैल्यू 4 रख रहा हूं, पुट n इक्वल टू 4। अगर n का वैल्यू मैंने 4 रखा तो मेरे को कौन सा टर्म मिलेगा, फोर्थ टर्म। सो आई विल गेट फोर्थ टर्म विच इज a4। सो a4 इज नथिंग बट a3 प्लस 2। a3 का वैल्यू 5 है, सो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। सो आई कैन से माई a4 इज गोइंग टू बी 7। ठीक है, एंड लास्टली पुट n इक्वल टू 5। अगर n का वैल्यू 5 रख दिया सो आई विल गेट फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कौन सा आ जाएगा, a5। a5 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a4 प्लस 2। a4 का वैल्यू 7 है और 7 में मैंने 2 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 9। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट a5 इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये तो इसके फर्स्ट 5 टर्म आ गए। पहला टर्म 1 है, सेकंड टर्म 3, थर्ड टर्म 5, फोर्थ टर्म 7 और फिफ्थ टर्म 9। और इसने ये क्या बोला है कि राइट करस्पॉन्डिंग सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है कि जितने भी तुमने टर्म निकाले उन सबको ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद में सेकंड टर्म, उसके बाद में थर्ड टर्म, उसके बाद में फोर्थ टर्म और उसके बाद में फिफ्थ टर्म और प्लस इस टाइप से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो सीरीज बोलते कैसे, वैसे अपन को आगे बताया जाएगा कि आपको कि सीरीज क्या होता है, सीरीज और सीक्वेंस में फर्क क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है। बट यहाँ पे अगर इसने सीरीज बोला है तो इसका मतलब क्या होता है कि इफ आई एड ऑल द टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस देन व्हाट एवर द एक्सप्रेशन वी गेट दैट इज कॉल्ड द सीरीज। तो ये मेरा क्या हो गया, एक सीरीज हो गया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज द करस्पॉन्डिंग सीरीज। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 से क्या बोल रखा है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 विथ हुज nth टर्म आर गिवन। ठीक है, nth टर्म गिवन है और मेरे को स्टार्टिंग के 5 टर्म्स निकालने हैं। तो करना क्या, n का वैल्यू 1 पुट किया तो वहां से फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 पुट किया सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा an इक्वल टू n ब्रैकेट n प्लस 2। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो आई विल गेट 1 टाइम्स 1 प्लस 2। सो दिस विल बी 1 टाइम्स 3 इक्वल टू 3। n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, सेकेंड टर्म मिलेगा, दैट विल 2 टाइम्स 2 प्लस 2। सो दिस विल बी 2 टाइम्स 4, सो दैट विल बी 8। n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, थर्ड टर्म मिलेगा, so 3 पुट करेंगे 3 टाइम्स 3 प्लस 2, so this will be 3 times 5 and I'll get 15। n का वैल्यू 4 पुट किया तो 4 टाइम्स 4 प्लस 2, so this will be 4 टाइम्स 4 प्लस 2 6,
4 इंटू 6 कितना हो गया 24। n का वैल्यू 5 पुट किया, सो आई गेट फिफ्थ टर्म दैट इज 5 टाइम्स 5 प्लस 2, दैट विल बी 5 टाइम्स 5 प्लस 2 इज 7, 5 इंटू 7 इज 35। तो इसके फर्स्ट 5 टर्म्स कौन से आ गए? फर्स्ट टर्म आ गया 3, सेकंड टर्म 8, थर्ड टर्म 15, फोर्थ टर्म 24 एंड फिफ्थ टर्म आ गया 35। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को करना क्या है, इन सारे क्वेश्चनों में n का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करना है। n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5, और उस पे जो गिवन एक्सप्रेशन है, n टर्म का गिवन एक्सप्रेशन है, उसको इवेल्युएट करना है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज an इक्वल्स टू n ओवर n प्लस 1। तो फर्स्ट टर्म के लिए n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, दैट इज 1 ओवर 1 प्लस 1, सो आई विल गेट 1/2। a2 सेकंड टर्म के लिए n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, सो आई विल गेट 2/3। n का वैल्यू 3 पुट कर दिया, थर्ड टर्म मिलेगा, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, सो दैट विल बी 3/4। n का वैल्यू 4 पुट कर दिया, फोर्थ टर्म मिलेगा, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, दैट इज बाई 4/5। n का वैल्यू अगर 5 पुट कर दिया, अगर n का वैल्यू 5 पुट कर दिया तो मेरे को कौन सा टर्म मिलेगा? अगर n का वैल्यू 5 पुट कर दिया तो मेरे को फिफ्थ टर्म मिलेगा, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, सो आई विल गेट 5/6। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, an इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। इसमें भी n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 पुट करना है, बहुत सिंपल है। a1 कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 1, इसका आंसर आ गया 2। a2 कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2, उसका आंसर आ गया 4। a3 कितना हो जाएगा 2 क्यूब, 2 क्यूब का वैल्यू कितना, 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। a4 कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो गया 16। और a5 कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 5 क्या था 2 पावर 4 इंटू 2, 2 पावर 4 का वैल्यू 16 है, 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 32। तो इसके फर्स्ट 5 टर्म्स कौन से हो जाएंगे अपने 2, 4, 8, 16 और 32। तो ये स्टार्टिंग के 5 टर्म्स अपने निकाल लिए। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इसके भी 5 टर्म निकालने, तो जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन के 5 टर्म निकाले। an इक्वल्स टू 2n माइनस 3/6, तो पुट n इक्वल्स टू 1, फर्स्ट टर्म मिलेगा दैट इज 2 टाइम्स 1 माइनस 3/6, सो आई विल गेट 2 माइनस 3/6, so my answer will be minus 1/6। n का वैल्यू 2 पुट किया, so I'll get 2 times 2 minus 3/6, so I'll get 4 minus 3/6, that will be 1/6। If I put n equals to 3, I'll get third term, that is 2 times 3 minus 3/6, so this will be 6 minus 3/6, that will be 3/6, and 3/6 is nothing but 1/2। n का वैल्यू 4 पुट किया, so I'll get 4 term, that is 2 times 4 minus 3/6, so this will be 8 minus 3/6, 8 minus 3 is nothing but 5, that will be 5/6। n का वैल्यू 5 पुट किया, I'll get fifth term, that will 2 times 5 minus 3/6, so I'll get 2 into 5 10, 10 minus 3/6, so that will be 7/6। तो फर्स्ट टर्म आ गया -1/6, सेकेंड टर्म 1/6, थर्ड टर्म 1/2, फोर्थ टर्म आ गया 5/6 एंड फिफ्थ टर्म आ गया 7/6। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, an इक्वल्स टू -1 होल पावर n-1, 5 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, n का वैल्यू 1 पुट किया, तो आई विल गेट -1 होल पावर 1-1 इंटू 5 पावर 1 प्लस 1। तो 1-1 0, तो कोई भी नंबर की पावर 0 होती है उसका वैल्यू 1 इंटू 5 पावर कितना हो गया 2, 5 पावर 2 कितना होता है 25, सो 1 इंटू 25 इक्वल्स टू 25। n का वैल्यू मैंने 2 पुट किया, सो आई विल गेट -1 होल पावर 2-1 इंटू 5 पावर 2 प्लस 1, सो दिस विल बी 2-1 कितना हो गया 1, तो -1 की होल पावर 1 कितना हो गया -1, सो -1 इंटू 5 पावर क्यूब, तो 5 क्यूब कितना होता है आई गेस 125, तो फाइनल आंसर कितना आएगा -125। a3 n का वैल्यू 3 पुट किया, तो -1 होल पावर 3-1, दिस विल बी 5 पावर 4, सो -1 होल स्क्वायर और 5 पावर 4, -1 का होल स्क्वायर 1 और 5 पावर 4 कितना होता है 625। ठीक है, a4 के लिए n का वैल्यू 4 रखा, तो 4-1 और 5 पावर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, सो दिस विल बी -1 इंटू 5 पावर 5, तो दिस विल बी 625 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी आई गेस 625 को मल्टीप्लाई कर लिया 5 से, तो दिस विल बी 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2
10 plus 2 12, 1 6 into 5 30, 30 plus 1 31. So this will be minus 3125. इसी टाइप से आप फिफ्थ कैलकुलेट कर सकते हो. फिफ्थ टर्म को यहाँ पे लिख रहा हूँ. फिफ्थ टर्म विल बी माइनस 1 होल पावर 5 माइनस 1 5 पावर 5 प्लस 1. तो यहाँ पे 5 माइनस 1 4, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 इंटू 5 पावर 6. अब 5 पावर 6 कैलकुलेट कर लेना 5 को 6 बार मल्टीप्लाई करके, या फिर जैसे करना 5 की पावर 5 का वैल्यू पता है 3125, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना. सो विल गेट द फिफ्थ टर्म. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 25, सेकंड टर्म माइनस 25, थर्ड टर्म 625, फोर्थ टर्म आ गया माइनस 3125, फिफ्थ टर्म आ गया दैट इज 5 पावर 6. इसको कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं सिक्स्थ. इसमें भी वही करना है, सेम स्टोरी. एन का वैल्यू प्लग इन करना है, तो जल्दी करते हैं. एन का वैल्यू 1 पुट किया, सो आई विल गेट 1 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 5/4. So this will be 1 times 1 square 1 plus 5 6, so 6/4. 6/4 is nothing but 3/2. n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 times 2 square plus 5/4. So this will be 2 times 2 square is 4, 4 plus 5 9, so 9/4. तो ये 2 से एक बार 2 कैंसिल हो जाएगा, so I'll get 9/2. A3 के लिए n का 3 रखा, so 3 times 3 square plus 5/4. So I'll get 3 times 3 square is nothing but 9 plus 5/4. मतलब इन सारे क्वेश्चनों में कर क्या रहे एक्चुअली, अपने वो लगे स्टार्टिंग में 5 टर्म्स बताने, तो n का वैल्यू 1 रखेंगे फर्स्ट आएगा, 2 रखेंगे सेकंड आएगा. उसके बाद में सीक्वेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया. उसके बाद में अपने को क्या करना है कैलकुलेशन, वो जितना फास्ट होगी उतना जल्दी आंसर आ जाएगा. 3 टाइम्स 14/4, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 14/4 कितना होता है 7/2, और ये हो जाएगा 21/2. A4 क्या होता है, n का वैल्यू 4 रख दिया, सो दिस विल बी 4 स्क्वायर प्लस 5/4. 4 से 4 कैंसिल हो गया, दिस विल बी 4 स्क्वायर 16 प्लस 5, 16 प्लस 5 कितना होता है 21. A5 के लिए n का वैल्यू 5 रख दिया, सो दिस विल बी 5 टाइम्स 5 स्क्वायर प्लस 5/4. दिस विल बी 5 टाइम्स 5 स्क्वायर इज 25, सो 25 प्लस 5/4. सो आई विल गेट 5 टाइम्स 25 प्लस 5 इज नथिंग बट 30/4. सो दिस विल बी 5 टाइम्स 15/2. सो फाइनली आई विल गेट 75/2. ठीक है, तो इस टाइप से अपने शुरू के ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए. ठीक है, आई होपफुली इतना तो समझ में आ रहा होगा. इसके बाद में अपन बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज एन टर्म्स आर गिवन. सेम टू सेम स्टोरी है. इसमें अपने को उल्टा कम पेन चलाना है, क्योंकि इसमें बोला है A17 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, n का वैल्यू 17 रख दिया. A17 का मतलब 17th टर्म पूछा है. तो 7th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऐसे बोल रहा है कि कोई भी सीक्वेंस है उसका n टर्म दे रखा है 4n-3. उसमें पूछा A17 निकालो, तो n का वैल्यू 17 रख दिया. और A17 क्या है अपने ऐसे बोल सकते हैं A17 इज नथिंग बट 17th टर्म, तो 17 रख दिया. दैट इज 4 टाइम्स 17 माइनस 3. 4 टाइम्स 17 कितना होता है 68 माइनस 3, ये कितना हो गया 65. बहुत ईजी. A24 निकालना है. A24 क्या है वैसे मेरा 24th टर्म है, तो n का वैल्यू 24 रख दिया यहाँ पे, तो 4 टाइम्स 24 माइनस 3, सो दिस विल बी 96 माइनस 3, दैट इज 93. ये अपना आंसर आ गया. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, an इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर n. तो n का वैल्यू क्या रखना है, A7 पूछा तो n का वैल्यू 7 रख दिया. A7 इज नथिंग बट 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 7 स्क्वायर 49, और 2 टू द पावर 7 कितना होता है, इसको ऐसे लिख लिया 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 2. सो दिस विल बी 49 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5 32, और ये कितना हो गया 2 स्क्वायर 4. तो 49 इंटू ये आई गेस 128. तो यहाँ से मेरे पास 7th टर्म है जो A7 है, उसका वैल्यू आ गया 49 डिवाइडेड बाई 128. अब आगे कैंसिल होगा नहीं, तो यहीं पे छोड़ दिए. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, an इक्वल्स टू -1 होल पावर n-1 इंटू n क्यूब में A9 निकालना है. A9 के लिए पुट, ये 9th क्वेश्चन कर रहे अपन, पुट n इक्वल्स टू 9. अगर n का वैल्यू 9 रख दिया तो A9 आ जाएगा, और A9 है क्या इस सीक्वेंस के लिए 9 टर्म, तो A9 विल बी -1 होल पावर 9-1 इंटू 9 का क्यूब. तो 9-1 8 होता है, सो -1 होल पावर 8 इंटू 9 क्यूब. 9 क्यूब कितना होता है 81 इंटू 9, दैट इज 729.
और ये पता है -1 के ऊपर अगर पावर इवन रेज होती है तो उसका आंसर 1 आता है, ओड रेज होती है तो -1 आता है। यहाँ पे पावर इवन है तो इसका आंसर 1 इंटू 81 इंटू 9 कितना होता है 729, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 729। तो इस सीक्वेंस के लिए 9 टर्म बोलो या फिर A9, इसका आंसर कितना आ गया 729। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, an इक्वल टू n टाइम्स n - 2 डिवाइडेड बाई n+3, इसमें A20 निकालना है। तो सिंपल है, पुट n इक्वल टू 20, यही अपने पढ़ा है, पुट n इक्वल टू 20। तो यहाँ से A20 का वैल्यू कितना आएगा 20 रखा तो 20 टाइम्स 20 - 2 डिवाइडेड बाई 20 + 3, तो कितना आ जाएगा 20 टाइम्स 20 - 2 18 डिवाइडेड बाई 23। अब 23 तो प्राइम नंबर है तो डिवाइड नहीं कर पाएगा तो मल्टीप्लाई किया, 18 को 20 से मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी 360 डिवाइडेड बाई 23। तो A20 कितना आ गया इसके लिए 360 डिवाइडेड बाई 23, तो इसके लिए A20 का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। तो पहले क्या करना है कि n का वैल्यू 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 टर्म निकालने और सबके ऊपर प्लस साइन लगाना। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि A1 तो उसने दे दिया कि A1 तो वैल्यू 3 दे दिया, और उसके आगे के टर्म निकालने के लिए उसने रिकर्सिव फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज an इक्वल टू 3 टाइम्स an - 1 + 2, और ये किसके लिए है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। n का वैल्यू 1 नहीं रख सकते क्योंकि 1 के लिए तो उसने ऑलरेडी दे रखा है, फर्स्ट टर्म इज 3, n का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा 2 3 4 5, तो n का वैल्यू मैंने 2 रखा, तो यहां से कितना आ जाएगा 3 टाइम्स A1 + 2, और A1 का वैल्यू निकालने के लिए इसने दे रखा है, A1 का वैल्यू दे रखा है 3, तो दिस इज 3 टाइम्स 3 + 2, तो A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 टाइम्स 3 9 हो गया, 9 + 2 11, तो ये हो गया A2 का वैल्यू आ गया 11। A3 निकालना है, A3 विल बी, इस फॉर्मूले में n का वैल्यू 3 रखा, दिस विल बी 3 टाइम्स A2 + 2, सो आई विल गेट 3 टाइम्स 11 + 2, तो यहां से कितना आएगा 3 टाइम्स 11 कितना हो गया 33 + 2 कितना हो गया 35, तो यहां से थर्ड टर्म कितना आ गया अपने मेरे पास 35, दो टर्म वो निकालें। A4 के लिए इसी में रखा, n की वैल्यू 4 रखा, सो आई विल गेट 3 टाइम्स A3 + 2, सो 3 टाइम्स A3 का वैल्यू कितना है 35 + 2, 35 + 3 कितना होता है आई गेस 105 होता है, 105 + 2 कितना आ गया 107, सो यहां से A4 का वैल्यू कितना आ गया दैट इज 107। A5 और निकालना लास्ट, A5 n का वैल्यू 5 रखेंगे, 3 टाइम्स A4 + 2, सो दिस विल बी 3 टाइम्स A4 का वैल्यू निकाल चुके अपन 107 + 2, दिस विल बी 107 into 3, this will be 321 + 2, 321 + 2 कितना हो गया 323, तो मेरे पास A5 कितना आ गया दैट इज 323। अब करस्पॉन्डिंग सीरीज निकालने के लिए सारे टर्म्स को उसी ऑर्डर में ऐड कर दिए, तो फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 11, थर्ड टर्म 35, फोर्थ टर्म 107 और फिफ्थ टर्म है 323, ये 5 टर्म हो गए, और आगे जाएगी तो ऐसे सीक्वेंस से चलती जाएगी। तो ये जो मेरा ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ये क्या है मेरा करस्पॉन्डिंग सीरीज। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 12। इसमें भी फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं और क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म निकालने के बाद में करस्पॉन्डिंग सीरीज फाइंड करना है। A1 का वैल्यू दे रखा है -1, और अगले टर्म निकालने के लिए इसने रिकर्सिव फॉर्मूला दे रखा है दैट इज an इक्वल टू an - 1 डिवाइडेड बाई n, और ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए वर्क करेगा। तो सिंपली पुट n इक्वल टू 2, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो A2 आ जाएगा, A2 विल बी A1/2, A1 का वैल्यू -1 दे रखा है, सो दिस विल बी -half। A3 के लिए n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, सो दिस विल बी A2 डिवाइडेड बाई 3, A2 का वैल्यू कितना दे रखा है -half डिवाइडेड बाई 3, सो दिस विल बी -1/6। A4 विल बी A3/4, A3 का वैल्यू -1/6 है डिवाइडेड बाई 4, सो दिस विल बी -1/24। A5 के लिए क्या आ जाएगा A4 डिवाइडेड बाई 5, A4 का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं दैट इज -1/24 डिवाइडेड बाई 5, सो दिस फाइनली कम्स आउट टू बी -1/20। ठीक है, सारे टर्म्स निकाल लिए और करस्पॉन्डिंग सीरीज निकालनी है, तो A1 का वैल्यू प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, मतलब ऐसा आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस ... ऐसे चलता जाएगा। A1 का वैल्यू कितना है
A1 का वैल्यू -1 दिया था, प्लस A2 का वैल्यू -½ है, प्लस A3 का वैल्यू -1/6, प्लस A4 का वैल्यू -1/24, प्लस A5 का वैल्यू -1/120, प्लस ... ये मेरी क्या आ गई, करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस आ गई, करस्पॉन्डिंग सीरीज, सॉरी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म दे दिया और उसके थर्ड टर्म से मेरे को फॉर्मूला दे दिया कि इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आगे के टर्म निकाल सकते हो। सो आई विल से A1 = A2 = 2। तो शुरू के दो टर्म तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसमें और इजी काम हो गया। आई हैव टू फाइंड A3, A4 एंड A5। तो उसके आगे के टर्म निकालने के लिए रिकर्सिव फॉर्मूला क्या है, an = an - 1 और ये किसके लिए काम करेगा, n > 2। मतलब 3, 4, 5 वो सब कुछ रख सकते हैं। n का वैल्यू 3 रखा, आई विल गेट A2 - 1। A2 का वैल्यू 2 दे रखा है, तो 2 - 1 = 1। सो यहां से मैं बोल सकता हूं कि A3 का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 1। तो A4 निकला, A4 के लिए मैं बोल सकता हूं कि A3 - 1। A3 का वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 कितना आ गया, 0। तो यहां से A4 का वैल्यू आ गया 0। सो आई हैव टू फाइंड A5। तो A5 का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज A4 - 1। A4 का वैल्यू 0 है, तो 0 - 1 = -1। तो यहां से A5 है, A5 का वैल्यू आ गया -1। तो करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस, करस्पॉन्डिंग सीरीज लिखनी है, तो आई हैव टू राइट करस्पॉन्डिंग सीरीज। करस्पॉन्डिंग सीरीज के लिए क्या करेंगे, सारे टर्म्स लिख दिए और उन सबको ऐड कर दिए। तो फर्स्ट टर्म A1 + A2 + A3 + A4 + A5 +... ये मेरी करस्पॉन्डिंग सीरीज होगी। फर्स्ट टर्म कितना है, 2, प्लस सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 1, फोर्थ टर्म 0, फिफ्थ टर्म -1 प्लस ... अगर आगे और टर्म आएंगे तो वो ऐड होते जाएंगे। तो ये मेरी क्या होगी, करस्पॉन्डिंग सीरीज। ठीक है, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फाइबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय I1 = A1 = A2 एंड और 2 के आगे के टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए रिकर्सिव फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, और फाइबोनाची सीक्वेंस अपन ने लेक्चर नंबर 1 में भी पढ़ा था, सेम टू सेम डेफिनेशन। तो क्या बोला, A1 = A2 = 1। ठीक है, तो रिकर्सिव फॉर्मूला क्या था, an = an - 1 प्लस an - 2। ठीक है, तो मेरे को ऐसे बोला कि n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 के लिए ये जो रेशियो है an + 1 / an, ये निकालना है। तो सबसे पहले मैं सोचो n का वैल्यू अगर मैं 1 रखा तो मेरे पास क्या आएगा, A2/A1। तो A2 A1 है, डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। 5 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 + 1 6 और A5। तो मेरे को A1 से लेके A6 तक की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने A1 से A6 तक का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया इस फॉर्मूले में रख के। n का वैल्यू 3 रखा, सो A3 विल बी A2 + A1, सो दैट विल बी 1 + 1 = 2। सो जब भी A3 की जरूरत पड़ेगी तो मैं A3 का वैल्यू 2 पुट कर दूंगा। A4 इज नथिंग बट A3 + A2। A3 का वैल्यू 2 है, A2 का वैल्यू 1, सो दिस इज गोइंग टू बी 3। तो यहां से मेरे पास A4 का वैल्यू आ गया 3। A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A4 + A3। A4 का वैल्यू 3 है, प्लस A3 का वैल्यू मेरे पास है 2, तो 3 + 2 इज गोइंग टू बी 5। तो A5 की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, 5। ठीक है, अब मेरे पास आया A6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A5 + A4। A5 की जगह मेरा आंसर आएगा 5, A4 की जगह 3, 5 + 3 = 8। सो माई A6 इज गोइंग टू बी 8। ठीक है, अब मेरे को n = 1, 2, 3, 4, 5 इसके लिए इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आई पुट n = 1, देन n = 1 हो जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा A2/A1। तो n = 1 के लिए मेरे को ये रेशियो बताना है। तो A2 का वैल्यू मेरे पास कितना है, 1, A1 का वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ गया, 1। सेकेंड, पुट n = 2, देन अगर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो मेरा रेशियो आएगा A3/A2। A3 का वैल्यू 3 है, A2 का वैल्यू कितना है, 1, सॉरी A3 का वैल्यू कितना है, 2। A3 का वैल्यू ये रहा, A3 का वैल्यू है 2। सो 2/1 = 2। नेक्स्ट इज पुट n = 3। अगर n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तब क्या आएगा, माई रेशियो विल बी A4/A3। A4 का वैल्यू 3 है और A3 का वैल्यू कितना दे रखा है, 2। सो दिस इज माई आंसर। पुट n = 4, n का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो आई विल गेट A5/A4। A5 का वैल्यू 5 है और A4 का वैल्यू 3 है। ठीक, और फाइनली लास्ट दैट इज पुट n = 5। अगर n का वैल्यू 5 लेंगे तब मेरा रेशियो क्या बनेगा, n का वैल्यू 5 लेंगे तो 5 + 1 तो 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई A5।
सो A6 अपॉन A5, A6 का वैल्यू कितना है 8 और A5 का वैल्यू कितना है 5। तो ये मेरे आंसर आ गए। n का वैल्यू 1 है तो रेशियो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3/2, 4 है तो 5/3 और 5 है तो 8/5। तो इसी टाइप से अपन n की कोई भी वैल्यू के लिए अपन ये रेशियो निकाल सकते हैं कि बशर्ते मेरे को ये दोनों टर्म पता हो। जैसे मेरे को बोले A50 निकाल दो, A51 डिवाइडेड बाई A50, तो A51 और A50 पता होना चाहिए, तब मैं फाइबोनाची सीक्वेंस का जो ये रेशियो है ये मैं निकाल सकता हूँ। अब तुम्हें पता चल गया कि A51 बहुत बड़ा है, क्योंकि A51 निकालने के लिए मेरे को A50 चाहिए, A50 निकालने के लिए A49 चाहिए। ठीक है, तो उतना करने की अपने को जरूरत नहीं है, अपने को इतना ही पूछा है। ठीक है, सो दिस वे we have completed all the question of exercise 9.1 and examples before that. So in next lecture we'll study about progression. Progression होता क्या है, progression के कितने टाइप होते हैं, और उससे related all these formulas and all the concepts of progression we'll discuss in next lecture.